علیہ السلام کا خوبصورت کلام پیش کیا گیا۔ اب اگلی اور ہمارے آج کے یہ 32ویں جلسہ سالانہ کی آخری تقریر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق رسول کے بارے میں، اور مقرر ہیں مکرم ظفر احمد ظفری صاحب۔ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ جیسا کہ اس آیت کے مفہوم سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے بنی نوع انسان، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پچھلے 1450 سالوں میں سینکڑوں اولیاء امت محمدیہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اپنی اپنی پیروی کے معیار کے مطابق اللہ کی محبت کو پایا، مگر اگر کوئی فرد امت اللہ تعالیٰ کے پیار کو اس حد تک پاتا جہاں اسے کثرت سے شرف مکالمہ مخاطبہ بخشا جاتا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مقام نبوت سے سرفراز نہ فرمایا جاتا تو قرآن مجید کا اعلان نامکمل رہ جاتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت کو پایا، اور دنیا والوں نے قرآن مجید کے اعلان کی سچائی کو خود مشاہدہ کر لیا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اسی پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو نہیں پاتا۔ اب میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے چند واقعات بیان کرتا ہوں، جس سے سامعین کو اس محبت کا کس قدر اندازہ ہو جائے گا جو آپ کے دل میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مکان کے ساتھ والی چھوٹی مسجد میں، جو مسجد مبارک کہلاتی ہے، اکیلے ٹہل رہے تھے، اور آہستہ آہستہ کچھ گنگناتے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی تار بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک مخلص دوست نے باہر سے آ کر سنا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، جو حضرت حسان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کہا تھا۔ وہ شعر یہ ہے، کنت السواد علی ناظری
फ़अमिया अलैका नाज़िरु मन शाअ बादका फलयमुत फ़अलैका कुन्तु हाज़िरु। यानी है खुदा के प्यारे रसूल, तू मेरी आँख की पुतली था जो आज तेरी वफात की वजह से अंधी हो गई। अब तेरे बाद जो चाहे मरे, मुझे तो सिर्फ तेरी मौत का डर था जो वाक़ई हो गई। रावी का बयान है कि जब मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इस तरह रोते हुए देखा और उस वक्त आप मस्जिद में बिल्कुल अकेले टहल रहे थे, तो मैंने घबरा कर अर्ज़ किया कि हज़रत, ये क्या मामला है और हुजूर को कौन सा सदमा पहुंचा है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त हसन बिन साबित का ये शेर पढ़ रहा था और मेरे दिल में ये आरज़ू पैदा हो रही थी कि काश ये शेर मेरी ज़बान से निकलता। दुनिया जानती है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर सख्त से सख्त ज़माने आए, हर किस्म की तंगी देखी, तरह तरह के मसाइब बर्दाश्त किए, हवादिस की आंधियाँ सर से गुजरी, मुखालफों की तरफ से इंतहाई तलखियों और इज़ाओं का सामना, हत्ता के कत्ल के साजिशी मुकदमात से भी गुजरना पड़ा। बच्चों और अजीज़ों और दोस्तों और अपने फिदाइयों की मौत के नज़ारे भी देखे, मगर कभी आपकी आंखों ने आपके कल्बी जज्बात की गम्माज़ी नहीं की। लेकिन अलहदगी में अपने आका रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मुतालिक, और वफ़ात वो भी जिस पर 1300 साल गुजर चुके हैं, ये मोहब्बत का शेर याद करते हुए आपकी आंखें सैलाब की तरह बह निकली और आपकी ये कल्बी हसरत झलक कर बाहर आ गई कि काश ये शेर मेरी ज़बान से निकलता। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हज़रत हसन का ये शेर मोहब्बत रसूल के इज़हार में हर दूसरे कलाम पर फाइक है, बल्कि मुराद ये है कि हज़रत मसीह मऊद के दिल में इश्क रसूल के कमाल की वजह से हर गैर मामूली इज़हार मोहब्बत के मौके पर यह ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश ये अल्फाज मेरी ही ज़बान से निकलते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आशिक़े सादिक़ गुलाम अहमद की जय, आशिक़े सादिक़ गुलाम अहमद की जय। एक वाक़या लाहौर के जलसा बिच्छू वाली के साथ ताल्लुक़ रखता है। आरिया साहिबान ने लाहौर में एक जलसा मुनक़िद किया और उसमें शिरकत करने के लिए हर मज़हब व मिल्लत को दावत दी और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी बासरार दरख्वास्त की कि आप भी इस बैनुल अक़वामी जलसे के लिए कोई मज़मून तहरीर फरमाएं, और वादा किया कि जलसे में कोई बात खिलाफ तहज़ीब और किसी मज़हब की दिल आज़ारी का रंग रखने वाली नहीं होगी। इस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब को बहुत से अहमदियों के साथ लाहौर रवाना किया और उनके हाथ एक मज़मून लिख कर भेजा जिसमें इस्लाम के महासिन बड़ी खूबी के साथ और बड़े दिलकश रंग में बयान किए गए थे। मगर जब आरिया साहिबान की तरफ से मज़मून पढ़ने वाले की बारी आई तो इस बंदे खुदा ने अपने कौम के वादों को बालाए ताक रख कर अपने मज़मून में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना जहर उगला और ऐसा गंद उछाला कि खुदा की पनाह। जब इस जलसे की इतला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को पहुंची और जलसे में शिरकत करने वाले अहबाब कादियान वापस आए तो आप हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब और दूसरे अहमदियों पर सख्त नाराज हुए और बार बार जोश के साथ फरमाया कि जिस मजलिस में हमारे रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा गया और गालियां दी गईं, तुम इस मजलिस में क्यों बैठे रहे और क्यों ना फौरन उठकर बाहर चले आए। तुम्हारी गैरत ने किस तरह बर्दाश्त किया कि तुम्हारे आका को गालियां दी गईं और तुम खामोश बैठे सुनते रहे। फिर आपने बड़े जोश के साथ ये कुरानी आयत पढ़ी, यानी ऐ मोमिनो, जब तुम सुनो कि खुदा की आयत का दिल आज़ार रंग में कुफ्र किया जाता है और उन पर हंसी उड़ाई जाती है तो तुम ऐसी मजलिस से फौरन उठ जाया करो ता वक्त के ये लोग किसी मौज़ूबाना अंदाज़ गुफ्तगू को इख्तियार करें। इस मजलिस में हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब खलीफा अव्वल भी मौजूद थे और वो हज़रत मसीह मऊद के इन अल्फाज पर निदामत के साथ सर नीचे डाले बैठे रहे।
बल्कि हजरत मसीह मौद के इस गयूराना कलाम से सारी मजलिस ही शर्म और निताबत से कटी जा रही थी। एक दफा घर के माहौल की बात है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ नासाज थी और आप घर में चारपाई पर लेटे हुए थे और हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मीर नासिर नवाब साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हो भी पास बैठे थे कि हज का जिक्र शुरू हो गया कि अब तो हज के सफर और सस्ते की सहूलत है पैदा हो रही है, हज को चलना चाहिए। इस वक्त ज़ियारत हरमैन शरीफ के तस्वुर में हजरत मसीह मौद की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और आप अपनी हाथ की उंगलियों से अपने आंसू पोंछते जाते थे। ये बात सुनकर फरमाया, ये तो ठीक है, हमारी भी दिली ख्वाहिश है, मगर मैं सोचा करता हूँ कि क्या मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को देख भी सकूंगा। ये खालिसतन घर के माहौल की बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें अथाह समुद्र की तुग़यानी लहरें खेलती हुई नजर आती हैं जो इश्क़ रसूल के मुतल्लिक़ हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कल्ब साफ़ी में मौजूद थीं। हज की किसी सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश नहीं, मगर ज़रा उस शख्स की बेपाया मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए जिसकी रूह हज के तस्वुर में परवानावार रसूल पाक के मज़ार पर पहुंच जाती है और वहाँ उसकी आंखें इस नज़ारे की ताब ना लाकर बंद होनी शुरू हो जाती हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की इस्लाम अहमदियत नाराए तकबीर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस इश्क की वजह से हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को आपकी आल औलाद और आपके सहाबा के साथ भी बेपनाह मोहब्बत थी। चनाचे एक दफ़ा जब मुहर्रम का महीना था और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने बाग में एक चारपाई पर लेटे हुए थे, आपने नवाब मुबारका बेगम साहिबा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हो जो इस वक्त छोटे बच्चे थे अपने पास बुलाया और फरमाया, आओ मैं तुम्हें मुहर्रम की कहानी सुनाऊं। फिर आपने बड़े दर्दनाक अंदाज में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात सुनाए। आप ये वाक़यात सुनाते जाते और आपकी आंखों से आंसू रवां थे और आप अपनी उंगलियों के पोरों से अपने आंसू पोंछते जाते। इस दर्दनाक कहानी को ख़त्म करने के बाद आपने बड़े कर्ब से फरमाया, यजीद पलीद ने ये जुल्म हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर करवाया, मगर खुदा ने भी इन जालिमों को बहुत जल्द अपने अजाब में पकड़ लिया। इश्क का लाज़मी नतीजा कुर्बानी और फिदायत और गैरत की सूरत में जाहिर हुआ करता है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में ये जज्बा बदरजा अतम मौजूद था। एक जगह ईसाई पादरियों के इन झूठे और नापाक एतराज़ों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं जो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर किया करते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेशुमार बहतान गढ़े हैं और अपने इस दजल के ज़रिए एक खल्क़ कसीर को गुमराह करके रख दिया है। मेरे दिल को किसी ने कभी इतना दुख नहीं पहुंचाया कि इन लोगों के इस हंसी और ठट्टा ने पहुंचाया है जो वो हमारे रसूल पाक की शान में करते हैं। इनके दिल आज़ार तनो तशनी ने जो वह हजरत गैरुल बशर की ज़ात वाला सफ़ात के खिलाफ करते हैं मेरे दिल को सख्त जख्मी कर रखा है। खुदा की कसम, अगर मेरी सारी औलाद और औलाद की औलाद और मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे माविन और मददगार मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिए जाएं और खुद मेरे अपने हाथ और पांव काट दिए जाएं और मेरी आंख की पुतली निकाल फेंकी जाए और मैं अपने तमाम मुरादों से महरूम कर दिया जाऊं और अपनी तमाम खुशियों और तमाम आसाइशों को खो बैठूं,
इन सारी बातों के मुकाबिल पर भी मेरे लिए ये सदमा ज़्यादा भारी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे नापाक हमले किए जाएं। बस ऐ मेरे आसमानी आका, हम पर अपनी रहमत और नुसरत की नज़र फरमा और हमें इस इब्तलाए अजीम से निजात बख्श। ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा जमात अहमदिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। यही वजह है कि अपनी इन अदीमुल मिसाल खिदमात के बावजूद जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होते हैं तो एक वफाशवार शागिर्द और एक एहसानमंद खादिम की हैसियत में अपना हर फूल आपके कदमों में डालते चले जाते हैं और बार बार आजी के साथ अर्ज़ करते हैं कि आका, ये सब कुछ आप ही के तो फैल है, मेरा तो कुछ भी नहीं। चुनांचे एक जगह फरमाते हैं, मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जैसा कि उसने इब्राहीम से मुकालमा मुखातबा किया और फिर इस्माइल से और इसहाक से और याकूब से और यूसुफ से और मूसा से और मसीह इब्ने मरियम से और सबके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हम कलाम हुआ कि आप पर सबसे ज़्यादा रोशन और सबसे ज़्यादा पाक वही नाजिल की। ऐसा ही उसने मुझे भी अपने मुकालमा मुखातबा का शर्फ बख्शा है, मगर ये शर्फ मुझे महज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल हुआ है। अगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ना होता और आपकी पैरवी ना करता तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते तो फिर भी मैं हरगिज़ कभी ये शर्फ मुकालमे का मुखातबा ना पाता। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, कादियान दारुल अमान, कादियान दारुल अमान। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात में से सामीन के सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके एक एक लफ्ज़ से उस इश्क का अंदाज़ा होता है जो आपके दिल में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद था। हुज़ूर फरमाते हैं, वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइक में नहीं था, नजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफताब में नहीं था, वो ज़मीन के समुद्रों और दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मरुद और अलमास और मोती में भी नहीं था, गर्ज वो किसी चीज़ अर्जी और समावी में नहीं था, सिर्फ इंसान में था, यानी इंसान कामिल, जिसका अतम और अकमल और आला और अरफा फर्क हमारे सैयद मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल अहया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद है, हजार हजार दुरूद और सलाम उस पर, ये किस आली मर्तबे का नबी है, इसके आली मुकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और इसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं। अफसोस के जैसा हक शनाख्त का है, उसके मर्तबे को शनाख्त नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा इसको दुनिया में लाया। इसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जे पर बनीनों की हमदर्दी में उसकी जान गुदास हुई। इसलिए खुदा ने, जो इसके दिल के राज का वाकिफ था, इसको तमाम अंबिया और तमाम अव्वलीन व आखिरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें इसकी ज़िंदगी में इसको दीं। असर हाजिर में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो असलूब हमें सिखलाए हैं, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी सरवरे दो जहां सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाएं और अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाले हों। आमीन सुम आमीन।